اسسٹنٹ کمشنر لطیفآباد نے حالی روڈ پر واقع ایک گودام پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر کراچی منتقل کی جانے والی گندم کو تحویل میں لے لیا۔ ضبط کی گئی گندم نجی فلور ملز کے نام پر کراچی سپلائی کی جا رہی تھی۔ کارروائی کے موقع پر میٹرو ون نیوز کے بیورو چیف سندھ فراز اکبر شاہین اس وقت اسسٹنٹ کمشنر لطیفآباد کے ہمراہ موجود ہیں۔ آئیے اس کارروائی سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی فراز اکبر شاہین، آگاہ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر سعود صاحب کے ساتھ اور آج انہوں نے ایک کارروائی کی ہے حالی روڈ کے اوپر۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کارروائی تھی اور آپ نے کس طریقے سے اس کارروائی کو اور اس آٹے کو جو ہے دوسرے شہر منتقل ہونے سے بچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم نے ویسے روٹین میں جو ہے نا ہماری کاروائیاں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف سندھ نے گندم کا ریٹ کم کیا ہے، لیکن پھر بھی جو یہ ہے منافع بخش جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں عوام کو ریلیف دیتے نہیں ہیں۔ تو اس پہ ہماری آنریبل چیف سیکرٹری صاحب نے ایک ہفتے والے دن ایک میٹنگ کی تھی پورے سندھ کے ایڈمنسٹریشن کے جو بھی افسران ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے اسٹرکٹلی یہ کہا تھا کہ جی ہمیں بالکل آٹے کا ریٹ جو ہے نا آپ لا دیں، جو ان کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا یا بیورو آف سپلائی کی طرف سے جو ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جو مقرر کیا ہوا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ڈیلی بیسس پہ کاروائیاں ہوتی رہیں۔ لیکن ایک آج رپورٹ یہ ملی تھی کہ حالی روڈ پہ کچھ ایک فلور مل ہے جس کا نام سن شائن فلور مل ہے، اور فلور مل وہ بند پڑی ہوئی ہے، اور اس کے کوٹا پر کچھ جو ہے نا ٹرکس جو وہ نکل رہے ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ کو پار کرتے ہوئے جامشورو اور کراچی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے جا کے وہاں پر ادھر جا گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ جی واقعی وہاں سے کوئی 10 سے 15 ٹرک نکل رہے تھے۔ تو مختلف فلور ملز کو وہ الاٹ کی ہوئی ان کے ایز پر دیئر کوٹا وہ انہوں نے نکال رہے تھے، اور اس پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ 6 جو ٹرک تھے آج کے دن میں نکل رہے تھے سن شائن کے نام پر۔ ہم نے جا کے ان کو روکا، اس کو سیل کر دیا۔ وہ ٹرک سارے ابھی ہماری تحویل میں ہیں لیکن کھڑے وہیں پر ہوئے ہیں گوڈاؤن میں، اور ہم نے جا کے امیڈیٹلی بیسس پہ پھر جا کے سن شائن کو ادھر جا کے وزٹ کیا اور دیکھا کہ وہ واقعی جو ہے نا ان آپریشنل ہے۔ اب یہ زیادتی ہے حیدرآباد کی عوام کے ساتھ کہ ایک ان آپریشنل مل کے اوپر یہ جو ان کے ایز پر دیئر کوٹا اور وہ جو ویٹ ہے ڈسپرس ہو رہی ہے اور وہ حیدرآباد کی عوام کو نہیں مل رہی۔ اچھا، ایز پر لا اب اس پہ کیا ایکشن ہوگا سر؟ دیکھیں ہم اپنے ہائی اپس کو یہ رپورٹ کر چکے ہیں، یا تو اس کا ویسے بھی ڈیفینیٹلی اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ اگر کینسل لائسنس ہو گیا تو پھر یہ کام ہی نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد جو فردر جو بھی کارروائی ہے وہ ہمیں ڈائریکشنز درکار ہوں گے ڈی سی صاحب کی طرف سے، یا پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ دیکھیں ان کا لا کیا کہتا ہے اس میں کیا ہونا ہے۔ اچھا سر، رمضان کی آمد ہے، تو رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ جو روز مرہ کی اشیاء ہیں ان کے اوپر آپ کا چیکنگ بیلنس ہے کہ وہ سستی ہونی چاہیے؟ جی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم یہ سارا کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں جو اسینشل کموڈیٹیز ہے اس پہ ہم ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں اور رینڈملی ہم چیکنگ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہوا۔ ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کارروائی شروع کی ہے، اور آنورڈ کے رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہتا ہے پورے شہر میں، لیکن ابھی اس کا جو آمد سے پہلے جو ذخیرہ اندوزی ہے نا اس کے خلاف بڑے کریک ڈاؤنز چل رہے ہیں، اور آپ کو اس قسم کی کارروائیاں کل پرسوں اور آگے نظر آتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اسسٹنٹ کمشنر سعود صاحب، اور آپ نے سنا کہ انہوں نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس سے انشاءاللہ تعالی عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ میں فراز اکبر شاہین، بیورو چیف سندھ۔ بیک بلیٹن میں خبر شامل کرنے کے چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب کی زیر صدارت کونسل کے عام اجلاس ہوئے، جس میں لیاقت آباد ٹاؤن اور جامعہ کراچی کے درمیان عوامی سہولیات کے پیش نظر بس سروس کی بحالی کے منصوبے کی منظوری لی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب کی زیر صدارت کونسل کے عام اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں اہم قراردادوں کی منظوری دی گئی، جبکہ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اجلاس میں وائس چیئرمین اسحاق تیموری، میونسپل کمشنر دریا خان پتافی، اراکین ٹاؤن کونسل کوارڈینیٹر صغیر احمد انصاری، کوارڈینیٹر انور جمال، ڈپٹی ڈائریکٹر کونسل ناصر خان اور دیگر بلدیاتی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں رویداد کی منظوری کے ساتھ مختلف قراردادیں پیش کی گئیں، جس میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد کے آج کے اجلاس میں لیاقت آباد ٹاؤن کے
کانٹریکٹ ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی، جس کا مقصد ادارے کے امور کو تسلسل کے ساتھ مؤثر انداز میں جاری رکھنا ہے۔ لیاقت آباد ٹاؤن اور جامعہ کراچی یونیورسٹی کے درمیان عوامی سہولت کے پیش نظر بس سروس کی بحالی کے منصوبے کی منظوری بھی دی گئی۔ اس اقدام سے طلباء اور اساتذہ کو سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ لیاقت آباد ٹاؤن کی حدود اور املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نجی سیکیورٹی کمپنی سے سیکیورٹی خدمات کے معاہدے کی منظوری بھی دی گئی۔ لیاقت آباد کی حدود میں سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو تربیت فراہم کرنے کے لیے قدویر انسٹیٹیوٹ ریسورسز سے معاہدے کی منظوری دی گئی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد B1 ایریا میں عالمی معیار کا اسپورٹس کمپلیکس کے قیام کے لیے DPMI انٹرنیشنل کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کی اصولی منظوری اجلاس میں پیش کی گئی۔ تمام قراردادیں اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن میں شہری سہولیات کی بہتری، تعلیمی اور اسپورٹس سرگرمیوں کے فروغ اور ادارہ جاتی نظم و نسق کو مؤثر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور کونسل کے فیصلے عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر کیے گئے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی میں پارلیمانی لیڈر اسد امان نے میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن خالد حسین جتوئی کے ہمراہ اسلام نگر میں جاری اور مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمی کراچی اور چیئرمین یونین کمیٹی نمبر 4 اسد امان اللہ نے میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن خالد حسین جتوئی کے ہمراہ اسلام نگر UC نمبر 4 میں جاری اور مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر پیور بلاک اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب مکمل ہونے کے بعد کام کے معیار اور افادیت کا عملی جائزہ لیا گیا۔ دورے کے دوران SHO مومن آباد معراج انور، علاقہ معززین، منتخب کونسلرز، بلدیاتی افسران اور ٹاؤن انتظامیہ کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اسد امان اللہ نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ نصب کی گئی اسٹریٹ لائٹس کی بروقت دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو مستقل طور پر روشنی کی سہولت میسر رہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسد امان اللہ نے کہا، اسلام نگر اور UC نمبر 4 کے دیگر علاقوں میں عوام کو بنیادی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیور بلاک اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب سے نہ صرف رات کے وقت آمد و رفت میں آسانی ہوگی بلکہ علاقے میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسلام نگر میں سیوریج لائن کی تنصیب اور نئی پانی کی لائن بچھانے کے کام کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جو طویل عرصے سے درپیش بنیادی مسائل کے حل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد علاقے میں نکاسی آب اور صاف پانی کی فراہمی کے مسائل میں نمایاں بہتری آئے گی۔ میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن خالد حسین جتوئی نے اس موقع پر کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ منتخب نمائندوں کی ہدایت کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کو شفاف، معیاری اور مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس موقع پر علاقہ معززین نے مشترکہ تعریفی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسلام نگر میں اسد امان اللہ کی قیادت میں پہلی مرتبہ باقاعدہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے اور مکمل بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں یہ علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم رہا، تاہم پیور بلاک اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، سیوریج لائن ڈالنے اور نئی پانی کی لائن کے منصوبوں سے اسلام نگر میں ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ علاقہ معززین نے اسد امان اللہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے عملی خدمت کی مثال قائم کی ہے، جس پر اہل علاقہ دل کی گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں اور مستقبل میں بھی ان سے اسی طرح عوامی خدمت کی توقع رکھتے ہیں۔ دورے کے اختتام پر علاقہ مکینوں نے اسد امان اللہ اور ٹاؤن انتظامیہ کے حق میں نعرے لگائے اور ترقیاتی کاموں کے تسلسل کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار بھی کیا۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا سیکٹر 5F میں 3 مقامات پر پیور بلاک منصوبوں کا افتتاح۔ چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ گلیوں کی پختگی اور شہری سہولیات میں بہتری کو ترقی کی جانب اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں گلیوں کی پختگی اور بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین محمد یوسف نے سیکٹر 5F میں مختلف 3 مقامات پر گلیوں میں پیور بلاک تنصیب کے کام کی تکمیل پر باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شعیب بن ظہیر، چیئرمین UC نمبر 5 عطاء الرحمان راجہ، وائس چیئرمین UC نمبر 5 توقیر خان، مختلف UCs کے چیئرمین اور وائس چیئرمین، کونسلرز اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین محمد یوسف نے کہا، نیو کراچی ٹاؤن میں
गलियों की पुख्तगी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि पेवर ब्लॉक जैसे मंसूबे न सिर्फ आमदोरफ्त को आसान बनाते हैं बल्कि इलाके की मजमूई खूबसूरती और शहरी सहूलियात में भी इजाफा करते हैं। उनका कहना था कि टाउन भर में मरहलावार पेवर ब्लॉक के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे ताकि शहरियों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने इस मौके पर कहा कि पेवर ब्लॉक मंसूबा अवामी फलाह बहबूद का अमली मजहर है जिससे इलाके के मकीनों को बराह रास्त सहूलत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि न्यू कराची टाउन इंतजामिया महदूद वसाइल के बावजूद अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और आइंदा भी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि पेवर ब्लॉक की तनसीब के साथ साथ मेयार और देरपा मजबूती को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम तवील अरसे तक इस सहूलत से मुस्तफीद हो सके। मद्रास चौक पर ग्रीन बेल्ट और मॉन्यूमेंट पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली ने काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली का कहना है कि ब्यूटिफिकेशन के जारी कामों की खुद निगरानी कर रहा हूं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली की हिदायत पर मद्रास रोड पर मोनूमेंट और ग्रीन बेल्ट की तामीर को मुतल्लिका अफसरान को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत के बाद काम तेजी से जारी है। मद्रास चौक पर मोनूमेंट की तामीर में सकाफती हुस्न को उजागर करने का खास ख्याल रखा जा रहा है जबकि ग्रीन बेल्ट को हाईवे से मुंसलिक होने की वजह से खूबसूरत बनाया जा रहा है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली ने कहा है कि ब्यूटिफिकेशन के हवाले से सफूरा टाउन में काम जारी है। मद्रास चौक ग्रीन बेल्ट के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। मद्रास चौक पर मोनूमेंट इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इसमें सकाफत को उजागर किया जा रहा है। जब ये मुकम्मल होगा तो इसकी फन तामीर में महारत हर किसी को मुतासिर करेगी जबकि जिस सड़क पर यह तामीर किया जा रहा है वो सड़क शहर को हाईवे से मुंसलिक करती है, लिहाजा इसकी ग्रीन बेल्ट को भी बेहतरीन बनाया जा रहा है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का समनाबाद प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट का दौरा। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात के साथ साथ इलाज के लिए आने वाले मरीजों से भी खैरियत दरियाफ्त की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने समनाबाद प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट का दौरा किया। दौरे के मौके पर उन्होंने तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात के साथ साथ इलाज के लिए आने वाले मरीजों से भी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर चेयरमैन नुसरतुल्लाह के हमरा यूसी चेयरमैन फैसल शेख और दीगर मुतल्लिका महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने अमले के आवाम को बेहतर और बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की और कहा शहरियों की सेहत की देखभाल गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा आवाम को बुनियादी और मेयारी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। समनाबाद प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट में बहुत ही कम मुआवजा में अल्ट्रासाउंड, ECG, शुगर टेस्ट किया जा रहा है और दवाइयाँ भी निहायत ही कम कीमत पर मरीजों को फराहम की जा रही हैं। हम मजीद सहूलियात की बेहतरी के लिए कोशा हैं ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम कर सकें। अद्वियात की दस्तयाबी और अमले की कारकर्दगी को मजीद मुयस्सर बनाया जा रहा है ताकि शहरियों को बेहतर इलाज मुयस्सर आ सके। अवामी मसाइल का बर वक्त हल और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फाहद ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े को देखते हुए औरंगी टाउन की ट्रेड यूनियंस को कल टाउन ऑफिस तलब कर लिया। साथ ही DC वेस्ट को भी खत इरसाल कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जुनेद जावेद से। जी जुनेद जावेद, आगाह कीजिएगा। है गुल प्लाजा के बाद शहर की तमाम TMCs ने इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं और आतिशज़दगी के पेश नज़र किन किन मामलात से जो है वो बचा जा सकता है उस तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। इस वक्त
आगा फहद अहमद खान दुरानी साहब। आगा साहब, आज आपने एक लेटर भी इशू किया है और कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को भी ख़त लिखा है। उस ख़त में क्या जिक्र किया गया है? और आपके इलाके में मार्केटें बहुत ज़्यादा हैं, कच्ची आबादी के लिहाज से एक बड़ा इलाका आपके पास लगता है, मार्केटों के अंदर तजावज़ात भरी पड़ी हैं, कैसे आप लोग ये सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सानिया हुआ है गुल प्लाजा, वो बहुत मीन्स के हम भी जो टीवी में देख रहे थे, हमारी भी समझो रूह कांप रही थी। तो मैं आज ऑफिस में आके मैंने और मेरे चेयरमैन साहब ने यही किया है कि जितने भी हमारे जैसे औरंगी ट्रेड वाले हैं, मोबाइल मार्केट वाले हैं, इन सबको कल 3 बजे का टाइम दे दिया आ जाए। हमने SOPs रखी हैं, हमारी 9 शराइत हैं, उसमें अगर ये पूरा उतरेंगे तो उनको हम NOC देंगे हमारी जो ट्रेड लाइसेंस की। अगर वो नहीं करेंगे तो ट्रेड लाइसेंस सबका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके अंदर जो शराइत हैं उसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं? उसके अंदर लिखी हुई है अपना फायर ट्रेडर की, उसकी वजह से तारें जो आपकी अपना खुली तारें वो करें, और अपना कोई इंतजाम होते हैं जो हमने आई डोंट नो, मुझे याद फायर सेफ्टी के हवाले से जो रखे हैं, वो हमने एक कमेटी बना के हमने आज वो फाइनल करके मैंने साइन करके उनको मैं सबको आज भेज दूंगा। अच्छा, फायर ब्रिगेड का महकमा तो बल्दिया हाउस में कराची के पास है, आपने उन लोगों से कोई रब्ता किया है? क्योंकि मार्केटों के अंदर जो सूरत हाल है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है और तजावज़ात भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, आज अभी मैंने अपने इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट को भेजा है पूरे औरंगी में। आज हमने डॉन जो होता है वो पूरा अपना सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद हम एक रिपोर्ट बना के हम डिप्टी कमिश्नर कराची और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनको हम भेजेंगे। अच्छा, एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट आप लोगों के पास है, तो आप लोग खुद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों आगे से सिंध हुकूमत की मदद लेना पड़ रही है? मसला ये है कि वहाँ पर एक तो अगर हम इंक्रोचमेंट हटाने जाते हैं, आपको पता है कि जब पुलिस नहीं होगी या फोर्स नहीं होगी हम अंदर नहीं जा सकते, तो इस वजह से आपको पता है कि क्या है वहाँ पर सीन। जी बिल्कुल, कल तमाम ताजिरों को जो है वो यहाँ टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी के मरकज़ी दफ्तर में तलब किया गया है और यहाँ पर बैठकर एक जामिया हिकमत अमली बनाई जाएगी। टाउन चेयरमैन जमील ज़िया जो है इस इजलास की सदारत करेंगे और तमाम तर जो SOPs हैं उनको देखा जाएगा। टाउन के इलाके में जितनी मार्केटें हैं बाकायदा तौर पर वहाँ पर सर्वे भी शुरू कर दिया गया है और दुकानदारों को जो विजिलेंस टीम है वो जाकर फ़र्दन जो है वो इस बात से आगाह कर रही है कि वो अपनी दुकानों के अंदर फायर सेफ्टी के जो है आलात ज़रूरी रखें ताकि किसी भी सानेहे से बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें मुतादिद ठेले पथारे जब्त किए गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुजात बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से राशिद मेनहास रोड, गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 5, अलादीन पार्क, बुध बाजार के अतराफ तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाते हुए ठेले, काउंटर, टेबल, कुर्सियां, पंक्चर का सामान और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मौके पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने तजावुजात कायम करने वालों को सख्त तनबीह की और दोबारा तजावुजात कायम न करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि तजावुजात के सबब सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अक्सर फंस जाती हैं। उन्होंने कहा कि मेयर कराची के हुक्म पर रोजाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। तजावुजात माफिया बेलगाम घोड़ा है जिसे काबू करने की शदीद जरूरत है। कार्रवाई की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर अली अलमदार ने की है। औरंगी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद ने आग से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से अफसरान का इजलास बुलवा लिया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान ने अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी, आतिशज़दगी से बचाव के इकदाम के हवाले से बल्दियाती अफसरान का इजलास मुनक्किद किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा, सानिया गुल प्लाजा एक अलमिया है। इस सानहे में कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई और ताजिरों के अरबों रुपए के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने इन लोगों के लिए जो अभी तक लापता हैं, जिन लोगों की जाने गई, उनके लिए दुआ की। म्यूनसिपल कमिश्नर ने डायरेक्टर
टैक्स को हिदायत दी कि फौरी तौर पर खसूसी टीमें तश्कील दें और अमले के जरिए तजारती मराकज़, मोबाइल मॉल, छोटे बड़े कारोबारी यूनिट्स, फैक्ट्रियाँ, शॉपिंग मॉल्स, कारखानों और कारोबारी शख्सियात यूनियंस के ओहदेदारान से मुलाकात करें और फायर सिस्टम फौरी तौर पर तनसीब करने का कहें। एक्सटिंग्विशर चलाने की जरूरी तरबियत अपने अमले को मुतल्लिका इदारे से दिलवाएं ताकि वो किसी भी हादसे की सूरत में आग बुझाने वाले आलात को इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा शादी हॉल्स और कारोबारी जगहों के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले हुए होने चाहिए और हंगामी अखराज जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिफाजती इकदाम करके ही बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने कहा, मैं खुद भी औरंगी टाउन की तमाम ट्रेड यूनियंस, शादी हॉल के ओहदेदारान, कारोबारी शख्सियात से मिलकर सानह गुल प्लाजा जैसे वाक़ियात से बचने के लिए मनसूबा बंदी और ऐसे इकदाम करेंगे जिससे अवाम की कीमती जाने और माल महफूज रख सकें। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने यूसी नंबर 5 का तफसीली दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS97 और चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने सोहराब गोट टाउन यूसी नंबर 5 खादिम हुसैन सोलंगी गोट का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर सोहराब गोट टाउन, मीर औरंगजेब मक्सी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोहराब गोट के मुतल्लिका अफसरान, मुख्तलिफ महकमा जात के जिम्मेदारान, टाउन अमला यूसी 5, खादिम गोट के बल्दियाती नुमाइंदगान और पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान चेयरमैन सोहराब गोट टाउन ने इलाके की मजमूई सूरत हाल, जारी और मौजूदा तरक्याती कामों का बगौर जायजा लिया और मकामी मोअज़्ज़िज़ीन और अवामुल नास से मुलाकात करके उनके मसाइल और जरूरियात से बराह रास्त आगाही हासिल की। अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मौके पर ही तरक्याती मंसूबों के हवाले से तफसीली दौरा करते हुए आइंदा तरक्याती इकदाम के लिए एक जामा लाए अमल तरतीब दिया गया। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा, यूनियन कमेटी 5 में तरक्याती कामों को शफाफ, मेयारी और बर वक्त मुकम्मल किया जाए। इन तरक्याती कामों में सेवरेज लाइनों की बेहतरी, फुटपाथों की तामीर, फेबर ब्लॉक की तनसीब, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी, सड़कों की मुरम्मत और दीगर बुनियादी सहूलियात शामिल हैं ताकि इलाके के आवाम को बेहतर शहरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें और उनके देरीना मसाइल का मुयस्सर हल मुमकिन बनाया जा सके। चेयरमैन ने इस अज़्म का इजहार किया कि सोहराब गोट की तमाम यूनियन कमेटियों में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा और अवामी फलाह बहबूद को हर सूरत तरजीह दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी खिदमत के विजन के मुताबिक सोहराब गोट टाउन में तरक्की और खुशहाली और अवामुल नास की खिदमत का सफर पूरी तंदही के साथ जारी है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मली टाउन में आग से बचाव के पेशगी इंतजामात, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स की इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मलेर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा, आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। आग जैसे हादसात से बचाव के लिए पेशगी इक़दामात नागुज़ीर हैं और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ बल्दियाती इदारे ही नहीं बल्कि मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़ की इंतजामिया को भी पाबंद किया जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। फायर सेफ्टी आलात की तनसीब को यकीनी बनाए, अमले को तरबियत दें और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुयस्सर इंतजामात रखें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा मलीर टाउन में मुमकिना आतिशज़दगी के खतरात से निपटने और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिजास्टर टैक्सेशन और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ तफसीली इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में फायर सेफ्टी के मौजूद इंतजामात, दरपेश खतरात और आइंदा के लाहे अमल पर तफसील से गौर किया गया। इजलास के दौरान चेयरमैन मलीर टाउन और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की कि मलीर टाउन में कायम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट, स्कूल्स, कमर्शियल इमारतों और दीगर अवामी मकामात पर फायर सेफ्टी इंतजामात का फौरी और जामे जायजा लिया जाए। इस मकसद के लिए बाकायदा फील्ड विजिट किए जाएं ताकि फायर फाइटिंग आलात, इमरजेंसी अखराजी रास्तों और हिफाजती निजाम की दस्तयाबी और फालियत को यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने वाज़ेह किया कि जो मार्केट्स या इदारे फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद में नाकाम
नाकाम पाए गए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन मली टाउन ने इस बात पर भी जोर दिया कि आवाम में आग से बचाव के हवाले से आगाही पैदा की जाए और मार्केट इंतजामिया, दुकानदारों और शहरियों को एहतियाती तदाबीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी ने इजलास में कहा, फायर सेफ्टी इंतजामात की बेहतरी के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान राब्ता मजीद मौसर बनाया जाएगा और फील्ड में जारी कार्रवाइयों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। मार्केट्स की कमेटियों और इंतजामिया को फायर सेफ्टी के हवाले से आगाही देने के लिए उनके साथ मीटिंग्स भी की जाएं। इजलास के इख्तिताम पर इस अमर का फैसला किया गया कि फायर सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद की बाकायदा रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी और मलिर टाउन को महफूज बनाने के लिए ये मुहिम तसलसल के साथ जारी रखी जाएंगी। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले दुकानदार शहरोज इकबाल को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गम की इस घड़ी में चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने नमाज जनाजा में खुसूसी तौर पर शिरकत करके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुल प्लाजा सानेहा में जाँ बहक होने वाले शहरोज इकबाल की नमाज जनाजा में चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही की शिरकत। हाजी नवाज बरोही ने मरहूम के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। जो ये वाक़या हुआ है मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सानिया है, तारीख का सबसे बड़ा सानिया मैं समझता हूँ जो हुआ है। उसमें हम जो हमारे जितने भी यहाँ भाई जवान बुजुर्ग जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, हम पहले तो हम उनके साथ बराबर के जो है कोशिश करेंगे कि उनके जनाज़ों पे पहुँचे और उनके लवाकिन से जो है हम मिलें और उनको अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और जिस तरह जो ये वाक़या हो गया है, एक तो समझो ये खलाब जो घरों का जो खलाब पैदा हो गए इन घरों में, जो जवान जिनके बच्चे गए या जिनके बुजुर्ग या जिनके जवान बेटे गए, उनका तो वो खला पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जिस तरह एक वाक़या ये हमारे शहरोज भाई जो थे सरजानी में जिनकी रिहाइश थी, जैसे ही हमें सुबह पता चला हम अपने 10 काम छोड़ के हम डायरेक्ट यहाँ जनाजे पे पहुँचे। हालांकि इनके लवाकिन ने हमें या किसी ने इतला नहीं दी थी, हमें किसी ज़रिए से इतला पता चला कि यहाँ ये वाक़या हुआ है। जो गुल प्लाजा वाला मंगो पीर टाउन में भी एक जो है ना आज जनाजा है, तो हम खुद जो है ना यहाँ पहुँचे, उनके लवाकिन से मिले और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दीनदार लोग हैं और बड़ी मुझे यहाँ दीनदार घराना लगा। ये जो बुजुर्ग इकबाल साहब थे और उनके दूसरे बेटे जो हैं वो बड़ा मतलब एक जिन्होंने जो सब्र का मुजाहरा किया, जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस तरह मस्जिद भरी हुई थी, मैं समझता हूँ ये शहीद है इंशाल्लाह, जो शहीद की मौत है वो इंशाल्लाह डायरेक्ट जन्नत में। देखिए मैं एक तो इंतजामिया और ख़ास तौर पर सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस तरह के जो है जो कमिश्नर साहब ने अहकामात भी जारी किए, आज एमसीज़ की मीटिंग भी है, इनकी जो है जांच पड़ताल हम करेंगे। जो जितने मार्केट्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, उसमें फायर के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से क्या उन्होंने इंतजाम किया है, पहले उनकी हम जांच पड़ताल करके हम रिपोर्ट ऊपर देंगे। फिर हमें उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट और सीएम साहब जो है उस पर अहकाम जारी करेंगे और इन्हें पाबंद करेंगे कि इस तरह के जो है फायर के और शॉर्ट सर्किट के जो मामला हैं उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। मैं उम्मीद करते हैं हम ख़ासतौर पर आईजी से और सीएम सिंध से कि जो भी मुलविस हैं उनको कैफर इकरार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इतने घराने इतने लोग जो है एक बंदे के पीछे कम से कम 4 से 5 कमाने वाला एक होता है, उसके खाने वाले 5-6 होते हैं। ये सिर्फ चंद सैकड़ों लोग नहीं, हज़ारों लोग जो है ना मुतासर हो गए। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही का कहना था कि गुल प्लाजा साने के मुतासिरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और लवाहिकीन के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। इस मौके पर लवाहिकीन और अजीजों ने चेयरमैन मंगो पीर टाउन की मौजूदगी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुतासिरा खानदानों को इंसाफ और रिलीफ फराहम किया जाएगा। नमाज जनाजा के बाद शहरोज इकबाल को सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही की शिरकत ने मुतासिरा खानदान के हौसले को सहारा दिया। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तरक्की याफ्ता इलाके पर जमात इस्लामी का नुमाइंदा मुसल्लत हो गया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को बंजर बना दिया। कोई गली कोई शाहराह बाकी न रही, पूरा इलाका ही तबाही का मंजर पेश कर रहा है। UC10 नॉर्थ नाज़माबाद का अहवाल आमिर आवान की इस रिपोर्ट में।
इलाके में तबाही के मनाजिर किसी और की बदौलत नहीं बल्कि इस टाउन चेयरमैन की बदौलत है जिसे आवाम ने मुंतखब करके चेयरमैन बनाया। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन यूसी नंबर 10 में सड़कों की बदहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही समेत कई मसाइल हैं जिसे हल सिर्फ जमात इस्लामी का नारा लगाने वाले टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान हल न कर सके। शहरी बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी पर शदीद नाराज हैं। तो इधर पानी बह रहा था, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया था, फिर मेरा हाथ टूट गया। बहुत गंदगी होती है, आने जाने में टीचरों को और बच्चों को बहुत दुश्वारी होती है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, अक्सर यहाँ फीमेल टीचर गिर भी गई। ये टाउन चेयरमैन ने ये काम स्टार्ट किया था, पानी का वाटर की लाइन थी 18 की, 2 महीने हो गए, 2 महीने में 2.5 साल में एक दफा भी टाउन चेयरमैन नहीं आया। वो जो काम स्टार्ट किया था, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे, खड्डा करके वो गुम हो गए, गायब हो गए। तो लिहाजा ये हमारी अपील है कि टाउन चेयरमैन को बोलें ये जो काम स्टार्ट किया था इसको मुकम्मल करें। ये देखो आपके सामने है, यहाँ से नमाजी भी जाते हैं तो कपड़े ख़राब होते हैं, ये पानी बह रहा है, कम से कम 20 साल तो हो गए, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये लाइन फटी हुई है, आप देख रहे हो कि कई लोगों को परेशानी इस पानी बहने से। मेरे पीछे देख सकते हैं पानी का एक दरिया है जो हज़ारों गैलन, हर सप्लाई में हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा होता है। हमने इस पे काफ़ी कंप्लेनें, काफ़ी दरख्वास्तें भी लगाई है, वीडियो भी बनाई है, मेयर तक भी पहुंच चुकी है, वाटर बोर्ड तक भी पहुंच चुकी है, टाउन चेयरमैन सब तक, लेकिन इस पे अभी तक कोई का अमल दरामद नहीं हुआ। कोई इकदाम नहीं है सर, कोई नहीं, और ना आज तक किसी को देखा है। बस वो आते हैं, अपना ट्रॉली उठाई, कचरा उठाया, जो भी गार्बेज है उसके बाद वो डाला, 2-3 वीडियोस बनाते और चले जाते हैं, बस ये सीन है इनका। अर्ज ये है, हमारे यहाँ टाउन चेयरमैन है आतिफ भाई, ये हमारी यूसी 10 नॉर्थ नाज़िमाबाद, यूसी 10 मुस्तफ़ाबाद, यहाँ माशाल्लाह से तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों की आबादी है। और यहाँ पे एक ही ये वाइट पार्क बचा है, पर्दा पार्क, जो 2.5 साल हो गए यहाँ पे, अभी तक इस पे कोई काम नहीं किया गया। ये बहुत बुरी हालत है, कितने दिनों से ये पानी, जो लाइन का पानी आता है तो सारा पानी, लाइनें टूटी हुई हैं, सड़कों पे आ जाता है, गलियों में आ जाता है। अच्छा, करोड़ों रुपए के फंड से वो बनाई गई सड़क है शाहराह नूर जहाँ, इस पानी की वजह से वो पूरी करोड़ों रुपए की सड़क भी ख़राब हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके पास जाते हैं वो बोलते हैं फंड नहीं है। भुट्टो का कराची है, हमारा रोजेदार भाई का कराची है। आप यहाँ से देखो पानी की लाइनें डैमेज पड़ी हुई हैं, पानी घरों में नहीं आ रहा, रोडों पे जा रहा है। ये कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा है लेकिन रोडों में पानी जा रहा है। अब हम किसको फरियाद करें, हम कहाँ जाके रोएं? हमारे यहाँ मतलब कई सालों से जो है इस मसाइल को फेस कर रहे हैं। एक तो पानी का मसला हमारे यहाँ, अब आप ये देखें, ये कच्ची आबादी से जो है वो पानी बहता है, मेन रोड तक जाता है, और हमारी गली में जो है वो पानी नहीं आता, हम तरसते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सड़कों का मामला ऐसा है कि पता नहीं किस मटेरियल की सड़कें बनती हैं, हर बारिशों के बाद ऐसा हाल हो जाता है जैसे बिल्कुल हम खंडरात में रह रहे हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने अवाम के साथ प्रैंक कर दिया है, जो वोट लेने के बाद ऐसे गायब हुए हैं कि उन्हें तलाश करने के लिए अवाम को इश्तिहार जारी करने पड़ेंगे। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।